तीनों दुनिया में मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी विद अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ कॉम्पिटेंट लेडी हु आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. मैं उनको अपनी बहन के माइयों पे भी बुलाना चाह रही थी बिकॉज आई लव द वे शी स्पीक्स एंड शी इम्पार्ट्स हर नॉलेज. And you know, she's been doing this for about 25 years. जिन लोगों को नहीं भी पता, you know, she is an artist as well, but you know, she speaks about spirituality in a very wonderful way. और आप लोग अभी देखेंगे. Let me introduce her as well. Her name is Fatma Agha. She's a public speaker on spirituality, a faith-based life coach, an artist, and a fashion designer. Welcome to the show. Thank you. Thank you so much for having me. How are you doing, Fatma? Very well, alhamdulillah. Great. So हम आज आपसे specifically बात करेंगे about anger, but before we actually do, I would love for you to tell us about your journey as well. How is it that from art you've gone into faith-based life coaching? I think that's so phenomenal. How do you do it? Okay, so actually it's the other way. I've been into spirituality since I can remember. It's been a passion and God has always intrigued me. I think God is the biggest mystery we have. So, you know, being a curious child, I always had so many questions. एंड मेरी मदर को मुझे याद है टीचर्स कॉल करके बोलती थी कि आपकी बेटी बहुत सवाल पूछती है, बहुत बातें करती है. बट यू नो नाउ व्हेन आई एम इन अ पोजीशन टू बी अ टीचर, आई रियली इनकरेज एवरीवन टू आस्क देयर क्वेश्चंस बिकॉज यू नो टू बिल्ड अ गुड कनेक्शन वन हैज़ टू हैव एन इंटरेक्शन. तो ये सफ़र मेरा बहुत पुराना है विद स्पिरिचुअलिटी एंड आर्ट स्टार्टेड लेटर. Oh, wow. And it started because I always loved to paint, but I didn't know how to express myself or my spirituality until one day मैं जो है वो एक कोक स्टूडियो की कवाली सुन रही थी and it just you know it just motivated me to just pick up my brush again and start painting. Wow. And which kawali was it, if you don't mind? It was Allahu Akbar. Wow. Okay. And I was Coke Studio ki Allahu Akbar. And I was listening to it and I started painting and I sent the picture to a few friends on WhatsApp and they wanted to buy it. And I was shocked and I was like, no way. And they're like, no, we're going to buy it from you. We're not going to just take it. And I think friends play such a big role in encouraging us, right? And मुझे इतना डर लग रहा था. She's like, नहीं आप gallery contact करो and tell us how much you sell it for, and that's how it began. And wow, so your art is basically inspired by spirituality as well? Absolutely. Your art features a lot of religion in it, and I mean, how? So I've been always interested in interfaith work. So मैंने बहुत सारा जो sacred art, Islamic geometry. How lovely. इन सब में काफ़ी specialize किया हुआ है. So you know it helps. And you use it as a form of healing as well? Absolutely, yeah. And you teach students as well? Yes. How lovely. How lovely. This is great. So that's great to know how your journey has been. अच्छा, so you know Fatma, आज हम लोग specifically बात कर रहे हैं कि लोगों को गुस्सा बहुत चढ़ता है रमज़ान में. And it's a natural process, you know. There are many emotions that a human goes through during a day. But specifically anger हमारे लिए बहुत damaging हो जाता है, हमारे लिए भी और जो हमारे सामने बंदा interact कर रहे हो उसके लिए भी. तो why does that happen specifically in Ramzan, and what are some of the tips you can share? Sure. Yeah. So my take on Ramzan, you know, and the रोज़ा is like अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, right? And फिर इस्लाम को कहा कि ये दीन फितरत है. It's a religion very close to our psychology. And what I see is that, you know, we do a lot of comfort eating when we have unresolved emotions. So what happens in Ramzan कि जब वो comfort eating हमसे ले ली जाती है and it's not available for us to suppress any emotion or deep inner you know wounding. तो उसमें क्या होता है कि now we don't have a way to deal with it. हम कोप नहीं कर पाते जो हम सारा साल कर रहे होते हैं खाने पीने के ज़रिए. Absolutely. You know, so a lot of the restrictions that Ramzan puts on us, it actually corners us. वो हमें एक उस मोड़ पे ले आता है जहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं you have to go inwards. You know, जब कोविड आया था तो people couldn't get out of their homes and people were saying if you can't go out, go in. Yeah, you know. So रमज़ान इस तरह का एक पूरा technology है. I think it's a spiritual technology. System. It's properly a system. Yeah, absolutely. Which is very aligned with human psychology, which is inviting us to say, look, बाहर से आपने अपने आप को बहुत distract कर लिया. अभी थोड़ा अंदर का काम करना है. Of course, absolutely. And you know, just before you came as well, मैं intro में यही बोल रही थी कि consider Ramzan as your trial period. Started and then वैसे ही 21 days में आपकी हैबिट चेंज हो जाती है, राइट? अच्छा, सो हाउ डू यू रिकग्नाइज एंगर इन अ पर्सन एज वेल? एंड व्हाट डिड द होली प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम,
say about anger, and can you give us some of his examples as well that can encourage the audience and me, as well. Yeah, I Of think course, it's all for ourselves Yes, first. yes. तो जो भी मैं बात कर रही हूँ वो मेरे अपने लिए पहले है, because like my mother says, बेटा बातें तो आप बहुत कर लेते हैं, Yes. लेकिन आपकी किरदार में और एक्शंस में भी वो ट्रांसलेट होता है. So and you should practice what you preach. Absolutely, yeah. Yes. I think वरना वो कहते हैं ना कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते आपकी ज़बान में भी असर नहीं होता. नहीं होता. So what I've seen is that over the years, the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is such a magnanimous example for us. That वो जो कुरान में एक आयत है कि वलकाज़िमीन अल-गैज़ व आफ़ीना लिन्नास कि Allah loves those who forgive and who are lenient to others, right? So we see that the Prophet practiced this. तो ये जो अल्लाह ताला के नाम है अस-सबूर यानी पेशेंट वन या अश-शकूर द ग्रेटफुल वन, we see that Uswatul Hasana, the Asmaul Husna, the names of God, got translated into Uswatul Hasana. वो हमें प्रॉफिट की लाइफ में ट्रांसलेट होते हुए एनिमेट हो गए, राइट? इट्स नॉट जस्ट थियोरी फॉर अस, वी आर सो लकी दैट एवरीथिंग विच इज़ इन द कुरान वाज प्रैक्टिस्ड by the Holy Prophet and it became a practical way of living example. for us as well. बिल्कुल, Yes. कि हम उसको एक रोल मॉडल समझ के इंसान होते हुए प्रैक्टिस कर सकें. Yeah. सो वी सी कि बहुत एक बचपन से स्कूल में हम एग्जाम्पल देखते हैं ना कि You're going to tell us an example about जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं and जो लोग शो भी देख रहे हैं and getting their spirituality on the way. This segment is specifically meant to calm you and ground you as well. और हमने ख़ास फ्राइडे के लिए फातिमा को बुलाया है कि वो हमें बताएं how can we forgive, and Fatima, Friday is a day of forgiveness and love, and what better day than in Ramadan, right? और आप हमें बता रही थी before going for break के Holy Prophet Muhammad peace be upon him की क्या ऐसी एग्जाम्पल्स थी जो हम फॉलो कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. बिल्कुल, अगर हम उनकी लाइफ देखें तो देयर सो मेनी एग्जांपल्स, बट वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट रियली स्टैंड्स आउट इज़ फतेह मक्का. रसूल अल्लाह ने उस टाइम पे पूरे अपने सारे एनिमीज़ को एक साथ जो है ना फॉरगिव कर दिया. एंड forgiveness at a time when you have the power to take revenge. Yeah. And then to forgive is what Allah subhanahu wa ta'ala is saying is jihadun nafs. Wow. Right? एक दफ़ा सारे सहाबा जब एक जंग लड़के आए और उन्होंने वो जीत ली थी जंग, तो रसूल अल्लाह ने कहा कि जिहाद मुश्किल था, तो उन्होंने कहा हाँ मुश्किल था. तो आपने फरमाया कि इससे भी मुश्किल बताऊं कौन सा जिहाद है. तो उन्होंने कहा नहीं आप बताइए, हमें नहीं पता. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहादुन नफ्स उससे भी ज़्यादा मुश्किल है. सो टू suppress your to hold back when you are in a state of anger is one of the finest characteristics that anyone can display. और हमारा तो यही मकसद होता है रमज़ान में कि हम रसूल अल्लाह की legacy को follow कर सकें, because he is admired not just by Muslims. Yeah. By all over the world because of his character. बिल्कुल. Absolutely well said. And जब हम लोग commercial break में थे, फातिमा मुझे बहुत अच्छी example दे रही थी about the soup example that you gave me. In fact, why don't you tell the audience and then I'll connect it with our daily life. Sure. So Yeah. इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के बेटे थे, उनका actual नाम अली था. So he was well known for his duas and prayers and all of that. So उनके घर में एक कनीज़ थी, because उस time पे we used to have this system. So she brought soup for him and accidentally dropped hot soup on him. So you can imagine कि गरम सूप अगर गिर रहा है तो किसी पे गया. कितना गुस्सा आएगा. So she suddenly got बहुत सहम गई वो, और उसकी हालत को देख के इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको कहा कि आज से तुम आज़ाद हो. As in इंसान की असल आज़ादी ये है कि वो अंदर से आज़ाद हो. Yeah. तो And the reason why he said that was because he wanted to free himself of the anger. Exactly. So the beauty of this is so much. अगर आप metaphorically भी अगर इसको देखें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करें, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी हाउस हेल्प से नाराज़ हो जाते हैं, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम रोज़े में होते हैं और हम रियलाइज़ नहीं करते कि उनका भी रोज़ा है. And I think it's so important to realize कि consider yourself lucky that you have help.
and be they are humans as well. How is it that you treat them in a way कि आप अपने आप को जब आज़ाद करते हो उस गुस्से थे तो आप अगले बंदे को भी आज़ाद कर रहे हो. So such a beautiful thing to share, and even more so in Ramzan कि किसी को अगर इससे कोई मैसेज मिलता है तो that's amazing. अच्छा फातिमा, one more thing I wanted to ask you was कि justified anger में और impulsive anger में क्या फ़र्क होता है? तो जस्टिफाइड एंगर जो होता है ना, उसकी दो चीज़ें हम देख सकते हैं. एक जस्टिफाइड एंगर होता है इन अ सोशल सेटिंग, जहाँ कोई एक इनजस्टिस हो रहा है, जहाँ एक सच के ख़िलाफ़ कोई चीज़ की जा रही है, किसी का हक लूटा जा रहा है. टू स्टैंड अप विद एंगर फॉर दैट इज़ एन एडमिरेबल क्वालिटी. क्योंकि अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो हम अपनी सोसाइटी में जस्टिस के लिए खड़े नहीं होंगे. तो वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हम आपके हालात नहीं बदलेंगे जब आप अपने हालात नहीं बदलेंगे. सो फॉर दैट इट्स अ जस्टिफाइड एंगर जो एक सोशल सेटिंग में होता है. और वही चीज़ घर के अंदर भी अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जैसे आपने एक सर्वेंट्स की बात की, यू नो, तो हमारी जो यंगर जनरेशन है माशाल्लाह उनमें ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी है कि दे विल गिव इक्वल राइट्स एंड दे आर वेरी हम्बल एंड दे आर वेरी नाइस टुवर्ड्स द हाउस स्टाफ. तो यू नो कभी कभी बच्चे पेरेंट्स के सामने खड़े हो जाते हैं कि आप इस तरह बात ना करें oh my God, so true, be nice और समथिंग लाइक दैट. तो हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चा मेरे सामने बोल रहा है, उसमें हमें और गुस्सा आता है. बट वो हमारी ईगो ट्रिगर हो रही होती है. क्योंकि इल्म या सच बात या अच्छी बात बच्चे कहें या बड़े कहें, वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू रिसीव एंड अगर आपके बच्चे करें तो बेहतर है, व्हिच मींस यू हैव डन समथिंग राइट टू रेज अ चाइल्ड हु इज नाउ टीचिंग यू, एंड वन शुड बी प्राउड ऑफ दैट, राइट, कि वो बच्चा सच के लिए खड़ा हो रहा है. एंड द इम्पल्सिव एंगर इज समथिंग कि जिसमें आपके साथ कुछ होता है और उसमें और आपके रिएक्शन में कोई गैप नहीं दिया आपने. तो एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिस्पॉन्ड. वी शुड मूव अवे फ्रॉम रिएक्टिवनेस टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिवनेस. और उसके लिए मुझे याद है कि यू नो मैंने अपने लिए घर में छोटी छोटी चिट्स हर जगह लगा दी थी. स्टॉप, पॉज एंड ब्रीथ. यू नो कि आप हर जगह देख रहे हैं कि जब गुस्सा आ रहा है तो ओके, आई हैव टू स्टॉप. So Fatma, you had anger issues as well? Yes. Because I was sharing my journey earlier as well, and it's nice to see. So did spirituality help you deal with that? Absolutely, yes. I think you know spirituality जो होती है ना, वो इस्लाम में स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि दूर दराज अलग रह के एसेटिसिज्म में हमारी ग्रोथ नहीं है. इट इज ट्रू इंटरेक्शन विद रिलेशनशिप्स. हमने होली तभी अल्लाह ताला ने जोड़ी भी बनाई है. बिल्कुल. यू आर नॉट मेंट टू बी अलोन इन दिस वर्ल्ड, यू आर मेंट टू बी विद अ पार्टनर, यू आर मेंट टू वर्क दीस थिंग्स आउट टुगेदर. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर हम अलग थलग हो जाएंगे तो फिर हमारा तो कोई टेस्ट ही नहीं है. लेकिन हम देखते हैं कि रसूल अल्लाह की लाइफ में भी आप एक बैलेंस देखें कि उन्होंने गारे हिरा में बैठ के मेडिटेशंस की 40 डेज तक, ब्रीदिंग जो भी वो करते थे, जिक्र पढ़ते थे. एंड देन देयर इज़ अ होल अरीना ऑफ लाइफ, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, वाइफ, चिल्ड्रन. तो इसका जो बैलेंस होता है उसको लाने के लिए हमें ये देखना होता है कि यू नो हमारे टीचर्स हमें ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है ना, वो आप ही के बारे में कुछ रिवील करने के लिए आ रही है. एब्सोल्युटली. सो अगर आपके अंदर जेलसी है या आपके अंदर एंगर है या हेट्रेड है, जो आपके साथ रवैया लोग रख रहे हैं या कोई सिचुएशन या सर्कमस्टांस से आप गुजर रहे हैं, इट्स एक्चुअली कमिंग टू रिवील योर सेल्फ टू यू. तो अगर तभी हम इस कॉन्सेप्ट को सेल्फ प्रोजेक्शन कह रहे होते हैं इन वेस्टर्न साइकोलॉजी. बिल्कुल. सेल्फ प्रोजेक्शन वो आप ही के दिल का हाल आगे होता है. बिल्कुल. जैसे यू नो लाइक माय मदर वुड से कि आप एक उंगली किसी की तरफ करते ना तो 3 आपकी तरफ हैं, राइट. कि वो कह रहे हैं कि नहीं, समथिंग इज़ विद इन यू. एंड रूमी सेज ना कि यू नो व्हाट यू सी इन मी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू. तो उस नज़रिए को जब लेके मैंने सोचना शुरू किया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यू नो देयर इज़ अ चाइनीज़ प्रॉवर्ब व्हिच सेज कि इफ़ यू ब्लेम, your journey hasn't started. If you blame yourself, you're halfway there. And if you don't blame, you have reached. तो बाहर किसी पे उंगली उठाने से पहले हर सिचुएशन में अगर हम अपना जायज़ा लें तो आई थिंक सोसाइटी बहुत बेहतर हो जाएगी. बिकॉज सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि हम अपने अंदर सब्र और तहम्मुल कैसे ला सकते हैं. हाउ इज़ इट कि हम लोग गुस्सा लोगों पे ना निकालें. बट मैं फिर फातिमा से बात कर रही थी नाम लाइक, तो फिर तो ये तो यू नो पैसिव अग्रेसिव हो जाएंगे. फिर अगर हम बॉटल अप करेंगे इमोशंस तो फिर यू नो व्हाट डज इस्लाम टीच अस अबाउट रिलीजिंग दैट. एंड देन वी गॉट इनटू द टॉपिक ऑफ सेल्फ लव. एंड नाउ फातिमा विल एक्चुअली टेल अस व्हाट इस्लाम सेज अबाउट सेल्फ लव.
जी, थैंक यू. It's a very interesting topic because self-love has become a new phenomena और हमारे यहाँ you know mainstream Islamic understanding होती है कि self-love नहीं होना चाहिए, ये selfishness है. But there's a little parable that I will share जिससे हमें ये बात समझ में आएगी कि एक you know अगर हमारे हाथ में एक चाय का कप है राइट और कोई आके हमें धक्का देगा तो क्या होगा उसके बाद? गिर जाएगा, चाय गिरेगी राइट. लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं ना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चाय क्यों गिरी तो आप उसका क्या जवाब दोगे? कि किसी ने मुझे धक्का दिया. लेकिन जो हमारे सूफ़ी मास्टर्स हैं वो ये स्टोरी सुनाते हैं और ये कहते हैं कि जब हमसे किसी ने पूछा कि चाय क्यों गिरी तो हमने कहा कि कप में चाय थी इसलिए चाय गिरी. राइट. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अस. हमने अपने अंदर क्या भरा हुआ है कि जब लाइफ में कोई चीज़ हमें धक्का देती है, नज करती है, इरिटेट करती है, कोई हमें गुस्सा दिलाता है, अंदर से जो निकलेगा ना वो अक्कासी करेगा कि आपने अपने अंदर क्या भरा हुआ है. सो जब कोई यू नो हम देखते हैं कि हमारे जो औलिया हैं, औलिया कराम हैं, इमाम हैं, अम्बिया हैं, तो उनकी हमें स्टोरीज़ में ये मिलता है कि उनके मुंह पे लोगों ने गालियाँ दी हैं. ठीक है. और उन्होंने जवाब में कहा कि बिल्कुल ठंडे होकर उन्होंने कहा अगर ये सच है मेरे बारे में तो अल्लाह मुझे माफ़ करके मेरी हिदायत करे, और अगर ये सच है, अगर ये गलत है, अगर ये झूठ है तो अल्लाह आपको माफ़ करे. यू नो मतलब टू हैव wow, how beautiful is that. ये तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि इनके अंदर ये ठहराव, ये यू नो सेंटर्डनेस, इतना ग्राउंडिंग कैसे आती है. एंड आई थिंक कि जो हमारे मोमेंट्स ऑफ ट्रिगर होते हैं ना, दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. आप रेस्ट ऑफ योर टाइम में अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं. मैंने एक अरसा ऐसा गुजारा कि मैं फजर के बाद उठती थी और मैं यू नो ऑल मॉर्निंग आई यूज्ड टू स्टे अलोन, डू माय कुरान रीडिंग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग. और यू नो उसके बाद मैं बहुत सारे सेल्फ यू नो अपने ऊपर काम करने या सेल्फ हेल्प बुक्स एंड कोर्सेज. तो इन वन ऑफ द वर्कशॉप्स वन ऑफ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग थिंग्स दैट आई केम अक्रॉस वाज सेल्फ केयर. और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप एक एक्सरसाइज करें कि आप एक पेपर लें और बग़ैर सोचे समझे कि वो मुमकिन है या नहीं है, आप लिखते जाएं वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आपको खुशी मिलती है. सो जस्ट डू माइंड डंपिंग ना, कि आपको जो भी माइंड में आ रहा है बस लिखते जाएं. Journaling. We call it the journaling concept. And you start putting now pointers कि 1, 2, 3. And so this is actually also how my journey in art began. आज से 6-7 साल पहले कि जब मैंने ये कोर्स किया तो वो टीचर मुझे कहने लगी नहीं just let it go. तो उसमें उन्होंने कहा मैंने कहा मैं ट्रैवलिंग लिखूँ, तो उन्होंने कहा हाँ लिखो. मैंने कहा लेकिन अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं ट्रैवल करूँ. तो उन्होंने बोला doesn't matter, आप बस लिख लें. You know, so I wrote crazy things like, you know, scuba diving or, you know, paragliding or painting or everything, right? Uske baad she said, what are the things you can do now which can make you feel better? And, you know, the first thing, you know, was painting for me. I love painting. So she said, anytime someone irritates you, anytime someone brings anger out in you, you know, she actually taught this to us. She said, "Aap bole ouch." No way. Ouch. Like literally verbalize it and say ouch. And remove yourself from that situation. Wow. And when you remove yourself from that situation, go and do something that will make you feel happy. जिससे आपको बहुत मजा आए. Like one of my friends, I said, आपको क्या पसंद है? तो you know, he said, आप जो है ना, मुझे ना एक जगह का स्पेशल चॉकलेट मिल्क शेक बहुत पसंद है. तो जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मैं जाता हूँ ड्राइव पे और एक चॉकलेट मिल्क शेक पी के आ जाता हूँ, फिर मैं ठंडा आ जाता हूँ. बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू इज़ नर्चर आवरसेल्व्स. क्योंकि अगर यू नो जिस तरह इन्होंने सूफ़ी मास्टर ने कहा कि जो आपके कप में है आप वो ही दूसरों को देंगे. अगर आपके दिल में अपने लिए रहम नहीं है आप दूसरों को रहम नहीं दे सकते. This is such a beautiful thing you've said. I think one of the cruelest people you will see are people who are so unforgiving to themselves. Exactly. और you know हम लोग ये segment भी जब शुरू कर रहे थे, अगर कोई गुस्सा किसी को चढ़ भी रहा है ना, तो फातिमा that person is an eternal optimist. That person is a perfectionist. वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एकदम से अगर कोई चीज़ ख़राब हो तो उनको गुस्सा चढ़ता है. Let's say about it. Right, and how is it that you deal with that with sabr as well? So it's amazing. These examples I think are very connectable. And you know हम लोग अगर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह सब्र लाना चाहेंगे तो what are some of the tips you can give our audience as well? मियाँ बीवी,
house help and mums. बिल्कुल। I know sometimes my mom loses her cool as well and I have to go in the kitchen and remind her as well कि मामा आपका भी रोज़ा है, उसका भी रोज़ा है, so chill. Yeah. You know? Yeah. And that's okay. I mean, she likes being reminded of it as well. Yes, Because हम भूल जाते हैं. Yeah, and we, you know, mashallah, I would commend your mother कि you know हमारे यहाँ elders usually offend हो जाते Offend हो जाते हैं. लेकिन if someone has a growth mindset, Set, yes. अगर आपकी एक अकाउंटेबिलिटी है ना अल्लाह के Yeah. सामने, तो आपके अंदर एक चीज़ जागी रहती है। तो है. कुरान में जो ये वर्ड है ना इत्तकुल्लाह, कि आप तकवा इख्तियार करें, तकवा का एक्चुअल मीनिंग डरना नहीं है। तकवा का एक्चुअल मीनिंग है यू बिकम अवेयर ऑफ अ सीक्रेट प्रेजेंस, Amazing. कि अल्लाह सुब्हान ताला एक सीक्रेट प्रेजेंस हैं जो मेरे साथ हैं हर वक्त। और यू नो हमारे यहाँ जनरली बोलते हैं अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपको गुस्सा करे। Allah is in you. In you, or there's a beautiful book, Secrets of Divine Love, Yeah. and in Yes. that she says, Allah is not watching you, Allah is watching over you. Over you. How lovely. There's a difference between vigilance and nourishing Taken care of. protection. तो अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। देख अगर रहे हैं। मुझे किसी चीज़ के उल्टे सीधे होने पे गुस्सा आ रहा है, इट्स ओके, अल्लाह संभाल लेंगे।